बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप ऑल आर वेल। आज हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला इज गिवन बाय y of u equals to y0 plus uc1 delta y0 plus uc2 del square y minus 1 plus u plus 1c3 del cube y minus 1 plus u plus 1c4 del 4y minus 2 and so on, where u equals to x minus x0 upon h, where x0 is the midterm, the mean of the values of x. Values of x. h is equal interval, h equal interval पर है और x0 is the midterm of x and formula is given by y0 plus uc1 delta y0 plus uc2 delta square y minus 1 plus u plus 1c3 delta q y minus 1 plus u plus 1c4 delta 4y minus 2 and so on. This is your Gauss forward formula. नाउ इसको हमने पहले लास्ट में प्रूव कर चुके हैं। अगला जो हमारे पास मेथड है वो गॉस सेकंड है हमारा गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। दिस इज योर GFF और दिस इज योर GBF। नाउ y of u equal to y0 plus uc1 delta of y minus 1 plus u plus 1c2 delta square y minus 1 plus u plus 1c3 delta cube y minus 2 plus u plus 2c4 delta 4y minus 2 and so on. u plus 2c4 delta 4y minus 2 and so on. This is your Gauss Backward formula. हम इनकी सहायता से स्टिलिंग फॉर्मूला निकाल चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसल फॉर्मूला है। नाउ गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास है इसमें हमें क्या करना है, शिफ्टिंग ओरिजिन 0 to 1 हम इसको शिफ्ट करेंगे और फाइंड आउट द न्यू फॉर्मूला गॉस थर्ड फॉर्मूला। गॉस थर्ड फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे किसमें, शिफ्टिंग ओरिजिन फ्रॉम 0 to 1 इन गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले की सहायता से हम इसको शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करके इसमें क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, गॉस थर्ड फॉर्मूला। और गॉस थर्ड फॉर्मूला इज गिवन बाय, जब इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो y of u equals to y0 plus u minus 1, u is replaced by u minus 1, शिफ्टिंग करने पर u is replaced by u minus 1, u plus 1 is replaced by u and so on. u plus 2 is replaced by u plus 1 and 0, this is y of minus 1 shifting, then y of 0, y of minus 2 is y of minus 1, y of 0 is shifting of y minus plus 1 and so on. So u c1 delta y0 plus, this is your delta y0 plus u c2 delta square y0 plus u c3 delta cube y minus 1 plus u plus 1 c4 delta 4y minus 1 and so on. This is your Gauss third formula which is derived by shifting the origin to 1 in Gauss backward formula. You get this one. Now to find out the Bessel formula, therefore to find out the Bessel formula, therefore Bessel formula is given by
Bessel formula is given by mean of Gauss forward formula and Gauss third formula, which is mean of Bessel formula in central difference. Central difference is the mean of Gauss forward formula plus Gauss third formula upon 2, which is given by Gauss forward formula plus Gauss third formula mean निकालना है. So therefore this is your Gauss backward formula, this is your Gauss backward formula. So हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं और इसमें Gauss थर्ड फॉर्मूला आपके पास में है और Gauss फॉरवर्ड फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ वापस, फिर इनका मीन निकालेंगे. तो ये हमारा Gauss फॉरवर्ड फॉर्मूला इज गिवन बाय y ऑफ u इक्वल टू y0 प्लस uc1 डेल्टा y0 प्लस uc2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस q प्लस 1c3 डेल्टा q y माइनस 1 एंड u प्लस 1 c4 डेल्टा 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन. Now mean निकालें. So this is equals to y of u equal to y0 plus y0 means y0 plus u minus 1 c1 and u c1 delta y0 common. So therefore u minus 1 c1 plus u c1 upon 2 into delta y minus delta y0. इन दोनों टर्म्स का मीन निकालना है. तो u minus 1 c1 plus u c1 delta y0 plus next term is uc2 is common. uc2 ब्रैकेट में आप देखिए डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2. दिस इज द थर्ड टर्म uc2 कॉमन डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2. नेक्स्ट इज uc3 प्लस u प्लस 1c3 अपॉन 2 एंड डेल्टा स्क्वायर y माइनस डेल्टा क्यूब y माइनस 1 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 एंड सो ऑन. दिस इज योर बेसल फॉर्मूला. दिस इज योर बेसल फॉर्मूला. हमने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं सेंट्रल डिफरेंस में, हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, जो कि आपको नीचे नीचे लिखा हुआ. दिस इज योर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला. फिर गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, देन बेसल फॉर्मूला एंड स्टीलिंग फॉर्मूला. 4 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं. चारों फॉर्मूलों के हमने प्रूफ निकाल चुके हैं. अब इन पे क्वेश्चंस भी हम करके देख चुके हैं और अभी फिर और क्वेश्चंस एग्जांपल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे. दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला. अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर इसको इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. नाउ use Bessel formula to find y25 from the following data. So data are given, y x हमें given है, इसके corresponding u हमें निकालना है और y हमें given है. So मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले 20, 24, 28 एंड 32. इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें गिवन है 24, 32, 35 एंड 40. दिस इज वी हैव गिवन. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y25. y25 पे बेसिक फॉर्मूले का यूज करके हमें वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट द टेबल, फॉरवर्ड टेबल, बिकॉज वी हैव गिवन y0 फिर डेल्टा y0. दिस इज योर फॉरवर्ड ऑपरेटर. Then this is again forward operator delta square, फिर delta square, then delta cube and so on. So this is the forward operator which is used so we can find the value of forward table from this table values. सबसे पहले आप क्या करें, u का मान निकालें x minus x0, where u equals to हमने जानते हैं कि x minus x0 upon h. This is u. x0 is the mid term या mean term. This is your x0. h is equal interval. So देखें y25.
सो हमें देखें इस टेबल में x0 की जो वैल्यू है वो हम लेंगे 24। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया कि यदि अपने पास अननोन दिस इज 25 और दीज आर दी इवन टर्म्स। सो इवन टर्म में 24 हो सकता है, मिड टर्म और नेक्स्ट हमारा 28, इनमें से कोई एक अज्यूम मीन मानना है। सो लेट अस सपोज दिस इज योर 24 अपॉन h is 4, h is equals to 4. So therefore this is your 0 minus 1 and 1 and 2. When you put x equals to 20, यदि x का मान मैं 20 रखूँ तो 20 माइनस 24 अपॉन 4, सो माइनस 4 अपॉन 4 इज माइनस 1, 24 माइनस 24 विच इज 0, 28 माइनस 24 4 अपॉन 4 का मान 1, और 32 माइनस 24 इज 8, तो 8 अपॉन 4 इज 2. So this is your values of u. Now find out the value of delta. Delta is 32 minus 24 is 8, 35 minus 32 is 3, 40 minus 35 is 5. Then delta square. Delta square is minus 5 and 2. Then delta cube equals to 7. This is your forward table. First of all we find out the value of u. u का मान निकालना है, टेबल बनानी है. अब u निकालेंगे. u equals to x minus x0. x is 25 जिस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस 24 आपने x0 की वैल्यू मानी है, और 1 अपॉन 4 h का मान है. समझ में आ गया? आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल ये जो u का मान फॉर्मूले में निकालना है, उसको रखने के लिए u बराबर 25 माइनस 24 अपॉन 4 which is equals to 1 upon 4. Therefore y of u equal to next y0. So ये u है, इसके करस्पॉन्डिंग ये u का मान है, इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज योर y0, दिस इज y minus 1, y1 and y2. दिस इज डेल्टा y minus 1, डेल्टा y minus 0 और डेल्टा y minus 1. दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर y0, y minus 1 and delta square y is 0. This is delta cube y minus 1. ये वैल्यूज हैं. अब आप इसके अकॉर्डिंग जो हमें जैसे डेल्टा y0, तो दिस इज योर डेल्टा y0. ये हमारे पास टेबल में देखें, टेबल में देखने पर ये y0 की वैल्यू है, दिस इज y0, दिस इज योर डेल्टा y0. y0 चाहिए आपको, फिर नेक्स्ट टर्म आपको डेल्टा y0 चाहिए, अगले में आपको चाहिए डेल्टा y0 डेल्टा y minus 1. तो डेल्टा y0 इज दिस वन डेल्टा y0 और दिस इज योर डेल्टा y minus डेल्टा स्क्वायर y minus 1. एंड अगले में हमारे पास डेल्टा क्यूब ऑफ y minus 1. दिस इज डेल्टा क्यूब ऑफ y minus 1. नाउ वी वांट टू पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला. इस फार्मूले में पुट करना है. सो यहाँ देखिए u minus 1 c1 प्लस u c1. सो अपन देखें तो अपने पास क्या आ गया, y0 प्लस u minus 1 c1 और u c1 मीन्स हमारे पास क्या होगा, u minus 1 c1 plus u c1 which is u minus 1 plus u. तो 2u minus 1 upon 2. तो 2u minus 1 upon 2 means u minus half. तो ये अपने पास वैल्यू होगी u minus half डेल्टा y0. u minus half डेल्टा y0 मीन्स इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, u minus 1 c1 plus u c1 upon 2. So u minus 1 c1 plus u c1 upon 2 करेंगे तो 2u minus 1 again divide by 2, so u minus half. So therefore this is your u minus half delta y0 plus u c2 means u minus 1 upon factorial 2 और ये डेल्टा स्क्वायर 0 plus delta square y minus 1 upon 2. Then next solve करेंगे u c3 plus u plus 1 c3 which is equal to u minus 1 u minus 2 upon factorial 3 plus u plus 1 u minus 1 upon factorial 3. So this implies 1 upon u कॉमन आ जाएगा, u minus 1 कॉमन आ जाएगा, so u minus 1 कॉमन upon factorial 3 कॉमन, तो u minus 2 plus u plus 1, u minus 2 plus u plus 1. So अपने पास आ जाएगा u minus 1. So therefore अगली जो वैल्यू होगी वो होगी u minus 1 whole square upon factorial 3 into 2. Factorial 3 into 2 means
6 into 2 12 and delta cube of y minus 1। ये इसको सॉल्व किया अपन ने, और सॉल्व करने के बाद इस फॉर्मेट में अपने लिख लिया u की वैल्यू की फॉर्मेशन में। नाउ वी वांट टू प्रूव द वैल्यूज u minus 1 u plus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। सो चाहे तो आप इसको और भी फॉर्मेट में कर दें चेंज। सो दिस इज इक्वल्स टू u minus half u minus 1 अपॉन 6 और डेल्टा क्यूब ऑफ y माइनस 1। ये भी वही फॉर्मेट है, आप इसमें से कॉमन निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी। नाउ वी वांट टू प्रूव, पुट दी वैल्यूज। y0 की वैल्यू हमने पुट किया 32 प्लस u इज 1/4, so 1/4 minus 1/2 डेल्टा y0 into 3 प्लस 1/4 minus 1 upon factorial 2 delta square y0 is 2 minus 5/2 plus 1/4 minus 1/2 1/4 minus 1 upon 6 into 7। और after solving these 1/4 minus 1/2 1/4 minus 1 into 7 by 6। So solving these तो आंसर आएगा 33.5। This is y0 plus y0 plus y1 upon formula is given by this। So 32 plus y0 plus y1 upon 2 formula में, तो 32 plus 35 upon 2 this is 33.5 plus 0.75 ये माइनस में है प्लस 0.140625 plus 0.05 46875। Now solving this 32.945313। This is y25, this is your y25 वैल्यू ऑफ y25। सो आपने देखा ये हमारे पास बेसल फॉर्मूला है। बेसल फॉर्मूले की सहायता से हमें सेंट्रल डिफरेंस से वैल्यू निकालनी हो तो हमें सबसे पहले तो u निकालना है। गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले से को चेंज करना है गॉस थर्ड फॉर्मूले में। गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले को चेंज इन गॉस थर्ड फॉर्मूला यूजिंग द शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन इन गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। जहाँ 0 था वहाँ 1 करें, जहाँ -1 था वहाँ 0 हो जाएगा, और जहाँ -2 था वहाँ -1 होगा, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला शिफ्ट हो जाएगा गॉस थर्ड फॉर्मूले में। फिर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला प्लस गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला अपॉन 2 करके आप इसका आंसर निकालेंगे। तो दिस इज योर गॉस बेसल फॉर्मूला फॉर सेंट्रल रेफरेंस। फिर इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको एग्जाम्पल फॉरवर्ड टेबल बनाए और फिर वैल्यूज़ को पुट करें। इसी के आधार पर आप और क्वेश्चंस करिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं इसको और अगेन एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। थैंक यू।